Welcome friends in lecture number 19, and in this lecture we discuss about numericals of the Faraday's law. Clear? Are you ready? Of course. How much electricity in terms of Faraday is required to produce number 1 20 gram of calcium from molten CaCl2. First of all, CaCl2 will give Ca plus 2 plus 2Cl minus. Now let us find the equivalent weight of the calcium. Molecular weight of calcium is 40 divided by oxidation state of the calcium is 2, and so my answer is 20 gram per equivalent. Okay, this is the equivalent weight of calcium. Now what is the formula? W is equal to EQ into IT divided by 96,500. But you know, I have to find electricity in terms of Faraday. So IT divided by 96,500 is equal to Faraday, and so W is equal to EQ into F. Okay, and so Faraday is equal to W divided by equivalent weight. What is W? 20 gram. And what is equivalent weight? 20. And so answer is 1 Faraday. Clear? This is the value of electricity must be passed to collect 20 gram of calcium from molten CaCl2. Next, 40 gram of aluminium from Al2O3. First of all, Al plus 3. This is the oxidation state of aluminium present in Al2O3. You know, equation Al plus 3 electron will give aluminium. And so, equivalent weight of aluminium is equal to molecular weight of aluminium 27 divided by oxidation state of the aluminium 3. Equivalent weight is equal to 9. Okay, you know, unit is gram per equivalent. Now, from this formula we directly put here W is equal to EQ into F. I again repeat, W is equal to EQIT divided by 96,500. But I have to find Faraday. So in place of IT divided by 96,500, I can put Faraday because the formula of Faraday is IT divided by 96,500. Okay, and so Faraday is equal to W divided by equivalent weight. What is the value of W? 40 grams divided by 9. And so my answer is 4.44 Faraday must be passed to get 40 gram of aluminium from molten Al2O3. Very easy numerical, and this is the numerical number 3.30 of the NCERT exercise. Now, in the exercise of NCERT, question number 3.14, how much electricity is required in coulomb for the oxidation of 1 mole H2O to O2? Now first, H2O to O2. You know, equation of the oxidation of the water 2H2O will give O2 plus 4H plus and plus 4 electron. If 2 mole H2O, how much electricity passed? 4 mole electron means 4 Faraday. Then if 1 mole H2O, then question mark, the answer is 2 Faraday, and is equal to 2 into 96,500, and answer is 193,000 कूलम. ओके, तो जब 2 मोल H2O का O2 में ऑक्सीडेशन होता है तब 4 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करनी जरूरी है, लेकिन क्वेश्चन में ये बताया
if you want to convert 1 mole H2O to O2, then how much coulomb is required? So अपन यहाँ लिखेंगे if 2 mole H2O then 4 Faraday, and if 1 mole H2O then question mark. So answer is 193,000 coulomb. Next, second, I want to convert FeO to Fe2O3 and with the help of the oxidation. So what is the equation? FeO plus O2 will gives Fe2O3. ओके यही हुआ ना, FeO का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे? Fe2O3. क्लियर? नाउ फॉर बैलेंस यहाँ मैं लिख रहा हूँ 2FeO और यहाँ लिख रहा हूँ मैं 1/2 O2. ओके, इन शॉर्ट क्या हुआ? 2Fe plus 2. ओके, इसमें से हुआ क्या? 2Fe plus 3 बना and plus 2 moles of electron will be free. तो यहाँ इसका मीनिंग क्या होता है? 2 मोल Fe plus 2 का मीनिंग ये होता है कि 2 मोल FeO is oxidized to Faraday. 2 Faraday electricity must be required. So मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 मोल FeO, then 2 Faraday electricity must be required, and to oxidize 1 mole FeO, which is asked in the question, then question mark. So easily answer is 1 Faraday is equal to 96,500 कूलम. ठीक है, बहुत ही आसान MCQ है, लेकिन आपको ये इक्वेशन कैसे बनाना है बराबर से आना चाहिए, और इस इक्वेशन के बेस पर ये जो मैंने इक्वेशन बनाया है उसका मीनिंग आपको निकालते आना चाहिए. अगर आप इसका मीनिंग निकाल पाएंगे तो पूरा ही जो न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है. दोनों ही न्यूमेरिकल लिखते हो. Okay friends, next MCQ, a solution of NiNO3 twice, बोले nickel nitrate is electrolyzed between platinum electrodes. You know, platinum is the inert electrode, using a current of 5 ampere. So I got first I is equal to 5 ampere for 20 minutes. So T is equal to 20 minutes is equal to 20 into 60 second. You know, T must be in second. Okay. What mass of nickel is deposited at the cathode? Okay, तो अपना फॉर्मूला क्या है? W is equal to EQIT divided by 96,500. But first of all, I have to calculate equivalent weight of the nickel. Is molecular weight is given in the numerical 58.7 by, you know, in NiNO3 twice, nickel is in +2 state. Ni plus 2 electron will be nickel. Okay, divided by +2 because the oxidation state of the nickel is +2. Okay, now W is equal to EQ into IT divided by 96,500. What is equivalent weight? 58.7 by 2 into what is the value of I? 5 ampere. What is the value of T? You know, 20 into 60 and divided by 96,500, and so my answer is 1.8248 gram of nickel is deposited at cathode when 5 ampere current for 20 minutes is passed through the solution of nickel nitrate. Okay, clear? बहुत ही आसान है. Next, this one be a good 3 electrolytic cell ABC containing solution of ZnSO4, second AgNO3 and copper sulfate respectively are connected in series. मैंने बताया था आपको, जब भी कोई इलेक्ट्रोलिटिक सेल को अपन सीरीज में ज्वाइन करते हैं तब अपन
कौन से फैराडे के लॉ के माध्यम से आगे बढ़ने वाले हैं? द सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। बट क्वेश्चन क्या है, चलो अपन पढ़ते हैं। A current of 1.5 ampere, first of all I is given 1.5 ampere was passed through them until 1.45 gram of silver। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ WAG, उसका मीनिंग ये होता है वेट ऑफ द सिल्वर। ओके, कितना है? 1.45 gram silver deposited at cathode of cell B. How long did the current flow? देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, How long did the current flow? हमें फाइंड क्या करना है, इस सेल में से जब 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर ऑब्टेन होता है एट द कैथोड, तब कितने टाइम तक करंट फ्लो होता है। हाउ लॉन्ग करंट फ्लो का मीनिंग ये समझना है कि टाइम फाइंड करना है हमें। ओके, सो T इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, नाउ वी राइट फॉर्मूला W इज इक्वल टू EQ IT divided by 96,500. Here we want EQ is equal to EQ of Ag is equal to, उनका मोलेकुलर वेट कितना है 108 डिवाइडेड बाय AgNO3 में Ag प्लस होता है ना, सो ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1, उसका आंसर क्या आता है 108। ओके, नाउ T अपन को फाइंड करना है, इसलिए क्या करेंगे, T इज इक्वल टू W into 96,500 divided by EQ into I. Put the values. W is equal to 1.45 into 96,500 divided by equivalent weight 108 into ampere 1.5, and so T is equal to 863.7 second। ओके, 863.7 सेकंड तक हमें करंट को फ्लो करना पड़ेगा टू ऑब्टेन 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर। और भी कुछ क्वेश्चन है। व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक वेर डिपॉजिटेड? यही इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, सेम करंट फ्लो किया है, सेम क्वांटिटी ऑफ करंट, सेम टाइम ऑफ टू फ्लो द करंट, ये दोनों ही सेम है। तो जब ये सब सेम होता है तो हमें यूज करना है सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। लेकिन उसके पहले अपन फाइंड करते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू, उनका एटॉमिक वेट है 63.5 डिवाइडेड बाय कॉपर सल्फेट में कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, CuSO4 में Cu होता है +2, ZnSO4 में जिंक होता है +2 और AgNO3 में Ag होता है +1। ओके, तो इनका ये हो गया 63.5 डिवाइडेड बाय +2 इज इक्वल टू 31.75। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक इज इक्वल टू 65.3 divided by +2, and so answer is 32.65. clear? Okay, now question number next, अपन को क्या फाइंड करना है, व्हाट मास ऑफ कॉपर। सो यूज द सेकंड लॉ ऑफ फैराडे, W ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय W ऑफ सिल्वर। देखिए हमें सिल्वर का वेट मालूम है, इसीलिए मैं सिल्वर का यहाँ यूज कर रहा हूँ, इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर, एंड सो वेट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर कितना मिला 31.75 इनटू ये यहाँ जाएगा, W ऑफ सिल्वर कितना है 1.45 डिवाइडेड बाय
इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर कितना मिला था 108 एंड सो आंसर इज 0.4262 gram. Clear? Next, for the zinc, same W of zinc divided by W of silver is equal to equivalent weight of zinc divided by equivalent weight of silver. So W of zinc is equal to, इस equivalent weight of zinc कितना है 32.65 into weight of silver यहाँ जाएगा 1.45 divided by equivalent weight of silver है 108 और उनका आंसर है 0.4383 gram of zinc must be obtained at the cathode. Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने किया क्या, मेरे को टाइम फाइंड करना था, कितने टाइम तक करंट को फ्लो करना पड़ेगा टू ऑब्टेन द 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर। तो मैंने EQIT डिवाइडेड बाय 96,500 फॉर्मूला को रखा और टाइम फाइंड किया 863.7 सेकंड। फिर ये जो पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल थे तीनों, वो मैंने सीरीज में ज्वाइन किया था, इसलिए मैंने यूज किया टू फाइंड द मास ऑफ कॉपर, द सेकंड लॉ ऑफ फैराडे, W of EQ divided by W of AG is equal to equivalent weight of copper divided by equivalent weight of silver। और उसी तरह मैंने जिंक का जो वेट है उसको फाइंड करने के लिए यही फॉर्मूला यूज किया। ठीक है, बहुत ही फाइन और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए IMP है ऐसा क्वेश्चन है, दोनों ही क्वेश्चन को आप लिख लो। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट 2 MCQ। देखिए अपन ने यहाँ NCERT के जितने भी क्वेश्चन थे बेस्ड ऑन फैराडे वो कंप्लीट किए ना। अब जो मैं MCQ करवा रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूँ, सभी एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल है विच इज यूज्ड फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन आल्सो एंड NEET आल्सो। क्लियर? ओके, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ गैस लिबरेटेड एट एनोड एट STP from 1 liter of 0.2 molar solution of CuSO4 and it electrolyte by 5.79 ampere current for 10,000 सेकंड। बहुत समय तक हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की 5.79 एम्पियर करंट को। क्लियर? ओके, तो फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ गैस लिबरेटेड एट एनोड। तो देखिए एक्वियस कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है, अगर उसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो एट एनोड मुझे मिलेगा क्या, एट एनोड 2H2O will gives O2 plus 4H plus and plus 4 इलेक्ट्रॉन। ओके, इस इक्वेशन के बेस्ड हमें क्या मिलेगा, O2। क्लियर? तो ये तो पहले मुझे मालूम हो गया कि O2 का वॉल्यूम मेरे को फाइंड करना है। नाउ वी हैव फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम V is equal to nRT by P and where N is equal to F divided by number of electron। So first of all क्या चाहिए, फैराडे फाइंड करना पड़ेगा। F is equal to IT divided by 96,500, I is equal to 5.79 ampere into 10,000 second divided by 96,500 and so Faraday is equal to 0.6 Faraday. Okay, now number of electron is equal to 4। जब हमें O2 मिलता है एनोड पर तब वहाँ 4 इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4। ओके, नाउ N is equal to F divided by Ne
0.6 divided by 4 and is equal to 0.15, and now V is equal to nRT by P. Okay, well, value of n 0.15, value of R 0.082, value of T 273 and value of P is equal to 1 atm. देखिए हमें यहाँ न्यूमेरिकल में क्या बताया है, STP, तो जब STP होता है तब टेम्परेचर दिया है या फिर नहीं दिया है, अपन को लेना क्या है 273 केल्विन। प्रेशर दिया है या फिर नहीं दिया है, हमें लेना क्या है 1 atm और 1 बार। क्लियर? तो इनका आंसर आता है V इज इक्वल टू 3.3579 लीटर। ओके, ये अपना आंसर हो गया। तो हमें एनोड पर कितना लीटर ऑक्सीजन मिलेगा 3.3579 लीटर। अब देखिए आगे जा रहे हैं अपन। सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू टू सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज। देखिए सीरीज में हमें दो सेल को कनेक्ट कर दिया है। पहला सॉल्यूशन है NiSO4, दूसरा सॉल्यूशन है AgNO3। नाउ अब करना क्या है, व्हाट अमाउंट ऑफ सिल्वर ऑब्टेन एट कैथोड व्हेन 1 मोल निकल ऑब्टेन एट कैथोड। देखिए हमें फाइंड करना है व्हाट अमाउंट ऑफ सिल्वर ऑब्टेन एट कैथोड when 1 मोल निकल ऑब्टेन एट कैथोड। तो देखिए करना क्या है, सिंपल है। NiSO4 जो है उनमें ये होता है Na+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो मिलता है मेरे को निकल। ये एट द कैथोड प्रोसेस है, ठीक है। तो जब 1 मोल निकल मिलता है तब कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास्ड होती है 2 फैराड। ओके, अब जो दोनों ही जो सेल है उसको मैंने क्या किया है, सीरीज में कनेक्ट किया है। दोनों ही सेल में से सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड हो रही है। तो सिल्वर नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन है उसमें से भी कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास्ड होगी, ये 2 फैराड, क्योंकि यहाँ 1 मोल निकल तो ऑलरेडी मिल चुका है ना, हमारे न्यूमेरिकल में तो ये दिया है ना, व्हेन 1 मोल निकल ऑब्टेन। तो 1 मोल निकल जब मिलता है तब 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो इसी सॉल्यूशन में भी 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। तो इक्वेशन क्या होगा, Ag प्लस इलेक्ट्रॉन विल गिव्स Ag 1 फैराडे देन 1 मोल। So 2 फैराडे is equal to question mark, and so answer is 2 mole Ag is obtained। आप इसी क्वेश्चन को W1 डिवाइडेड बाय W2 is equal to EQ1 डिवाइडेड बाय EQ2 के बेस्ड पर अगर करेंगे तो भी यही आंसर आएगा। डिफरेंट ये होगा कि हमको करना क्या पड़ेगा, निकल का जो मोल दिया है उनको एटॉमिक वेट से कन्वर्ट करके ग्राम्स में लेना पड़ेगा वैल्यू, और ये जो आंसर आएगा वो भी हमें ग्राम्स में मिलेगा। यही खाली डिफरेंट है, लेकिन आंसर दोनों में ही सेम ही आता है। दोनों ही MCQ को आप लोग लिख लो। Next to MCQ, if 1 mole electron, तो पहले अपन ये लिखेंगे 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 फैराडे। क्लियर? नाउ पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ CuSO4। CuSO4 में से 1 मोल इलेक्ट्रॉन मींस 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास किया। सिल्वर नाइट्रेट AlCl3, उन तीनों ही सॉल्यूशन में से 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी को पास्ड किया। व्हाट मोल रेशियो, देखिए हमें मोल नहीं फाइंड करना है, वेट भी नहीं फाइंड करना है, मोल रेशियो फाइंड करना है ऑफ द मेटल्स
copper, Ag and aluminium will be deposited at cathode. अब तीनों ही जो सेल्स है उस तीनों ही सेल को सीरीज में ज्वाइंट किया है या फिर नहीं ज्वाइंट किया ये बताया गया नहीं है, लेकिन ये जरूर बताया है कि तीनों ही सॉल्यूशन में से 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी को पास किया है। तो मैंने ये आपको एक बार लिखाया था, इफ n फैराडे electricity passed, then F by Ne mole deposited। ये मैंने आपको लिखाया था फॉर न्यूमेरिकल्स के लिए, लिखाया था कि नहीं, याद है क्या आपको? If n Faraday electricity passed, then F divided by any moles of metals will be deposited at cathode। तो चलो अपन क्या करेंगे, CuSO4 है, CuSO4 जैम AgNO3 जैम AlCl3, इसमें क्या होता है Cu+2 जैम Ag+1 और जैम Al+3। डायरेक्टली एमसीक्यू को कैसे सॉल्व करते हैं इसीलिए मैं इस टाइप को मैं लिख रहा हूं। चलो इसके बारे में क्या लिखेंगे, F डिवाइडेड बाय एनी 1 फैराडे मैंने पास्ट किया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विद दिस रिडक्शन प्रोसेस 2 जैम 1 फैराडे मैंने पास किया और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विद दिस रिडक्शन रिएक्शन 1 एंड जैम 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी को मैंने पास किया और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विद दिस रिडक्शन प्रोसेस इज 3। सो रेशियो क्या आया 1/2 जैम 1/3। देखिए हमें जो ऑप्शन बताए हैं उस ऑप्शन में ये तो रेशियो है ही नहीं, तो अब इसका आंसर ये भी आ सकता है 3/6/2। ओके कंप्लीट। तो इस तरह ये एमसीक्यू को अपन सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ओके नेक्स्ट, इफ 241.25 कूलम इलेक्ट्रिसिटी मेरे को दिया है, Q is equal to 241.25 coulomb is passed through AgNO3 solution, what mass of silver will be deposited at cathode? ओके अपने पास फॉर्मूला है W is equal to EQ into IT divided by 96,500। अब यहाँ जो IT है उसमें ये जो पूरा न्यूमेरिकल है I भी नहीं दिया है, T भी नहीं दिया है, तो जरूरत भी नहीं है ना, क्योंकि I into T तो क्या होता है Q, तो Q तो अपन को दिया है ना, तो क्या बताएंगे EQ into Q divided by 96,500, equivalent weight is equal to 108 into Q is equal to 241.25 divided by 96,500, and so answer is 0.27 gram of silver is deposited at the cathode। दोनों ही न्यूमेरिकल लिख लो। ओके मित्रों, नेक्स्ट 3 एग्जाम्पल की ओर अपन जा रहे हैं। 19.5 ग्राम पोटेशियम इज ऑब्टेन्ड व्हेन सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास की है KCl के सॉल्यूशन में से, उसकी वैल्यू हमें नहीं बताई है। ओके, फाइंड द मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑब्टेन्ड व्हेन सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जितनी इलेक्ट्रिसिटी KCl के सॉल्यूशन में से पास की उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी जब हम AlCl3 के सॉल्यूशन में से पास करेंगे तब कितना एल्यूमिनियम मिलेगा एट द कैथोड, ये हमें फाइंड करना है।
तो when the same amount of electricity passed, you can use formula according to Faraday's second law and is equal to W of potassium divided by W of aluminium is equal to equivalent weight of potassium divided by इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम। ये फॉर्मूला आप लोग यूज कर सकेंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे अपन, मैं साइड में लिख रहा हूं AlCl3 में क्या होता है Al प्लस 3 और KCl में क्या होता है K प्लस 1। ओके, नाउ W पोटेशियम कितना दिया है 19.5 ग्राम, ये हमें फाइंड करना है W ऑफ एल्यूमिनियम। ना इक्विवेलेंट वेट ऑफ पोटेशियम कैसे फाइंड करेंगे, उनका मोलर मास कितना है 39 डिवाइडेड बाय 1 बिकॉज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द पोटेशियम इज +1 एज वेल एज atomic mass of aluminum is 27 divided by oxidation state of the aluminum is +3. This is the equivalent weight of aluminum and this is the equivalent weight of potassium. Clear? So on 19.5 divided by W of aluminium is equal to 39 divided by 9. Okay, and so W of aluminium is equal to 4.5 gram. Clear? This is the answer. हमें कैथोड पर कितना ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट मिलेगा 4.5 ग्राम एल्यूमिनियम। ओके, क्लियर? ओके, when 25 मिली एम्पियर, मेरे को यहाँ दिया है I is equal to 25 मिली एम्पियर, उसका मीनिंग ये भी अपन निकाल पाएंगे 25 into 10⁻³ एम्पियर is equal to 0.025 एम्पियर। बिकॉज मैंने आपको बताया था कि जो करंट I है वह मस्ट बी एम्पियर में ही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, थ्रू द CaCl2 सॉल्यूशन फॉर 6000 सेकंड, तो दिया क्या है T is equal to 6000 सेकंड। फाइंड क्या करना है, मास ऑफ कैल्शियम यानी कि W of calcium I have to find. Then first of all equivalent weight of calcium is equal to 40 divided by 2 because CaCl2 जो है वहाँ क्या होता है Ca+2। ओके, सो उनका एटॉमिक वेट कितना है 40 डिवाइडेड बाय ऑक्सीडेशन स्टेट +2 and is equal to 20. Okay, now formula W is equal to Eq into IT divided by 96,500. What is the equivalent weight? 20 into I, 0.025 into T, 6000 second divided by 96,500, and so answer is 0.031 gram. Okay, 0.031 gram of calcium will be obtained when 25 milliampere current is passed for 6000 second. आसान है ना? Okay, चलो। How much electricity required in coulomb? हमें electricity coulomb में find करनी है। When to convert 2 mole of MnO4-1 into Mn+2। NCERT का एक एग्जाम्पल मैंने इसी टाइप का आपको करवाया था, तो इसके लिए पहले हमें इक्वेशन लिखना पड़ेगा MnO4-1 convert into Mn+2. Now this is the 1 mole, this is the 1 mole. Okay, now see, oxidation state of the manganese is +7 and oxidation state of manganese is +2. So whenever we convert MnO4-1 to Mn+2, कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है वहां, यहां मैं लिख रहा हूं 5 इलेक्ट्रॉन। ओके, जब MnO4-1 है और 5 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तभी क्या होगा
Mn+2 मिलेगा ना, तो अब क्या लिखेंगे अपन, इफ 1 मोल MnO4 -1 देन 5 फैराडे, 5 इलेक्ट्रॉन का मीनिंग तो ये होता है 5 मोल इलेक्ट्रॉन, देन 5 फैराडे, सो 2 मोल MnO4 -1 is equal to question mark, it is equal to 10 फैराडे। अपन को आंसर चाहिए इन कूलम, तो क्या करेंगे, 10 into 96,500, and so answer is 965,000 कूलम। ओके, आपको सिर्फ यही करना है, MnO4 -1 में से Mn+2, ऑक्सीडेशन स्टेट +7, ऑक्सीडेशन स्टेट +2, तो 7 में से 2, कितना इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हुआ, 5 इलेक्ट्रॉन का ना। उसका मीनिंग ये होता है कि इफ 1 मोल MnO4 -1 gain 5 moles of electron to convert 1 mole of Mn+2, so मैंने क्या लिखा यहाँ, if 1 mole MnO4 -1, 5 Faraday electricity will be required, okay, to obtain Mn+2, so 2 mole MnO4 -1 is equal to question mark is equal to 10 Faraday and is equal to 10 into 96,500 coulomb, so 965,000 coulomb electricity must be passed, okay, तीनों ही MCQ को लिख लो। ओके फ्रेंड्स, चलो अभी लास्ट 2 न्यूमेरिकल इस लेक्चर के करेंगे और उसके बाद अपन का लेक्चर खत्म। ओके, चलो स्टार्ट। वन ऑफ द गुड क्वेश्चन, फाइंड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम। हमें कूलम में इलेक्ट्रिसिटी यानी कि Q फाइंड करना है। ओके, टू कन्वर्ट 12.3 ग्राम नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन। इतना ही छोटा न्यूमेरिकल है, लेकिन आपको पूरी रिएक्शन बनानी जरूरी है, ठीक है। तो क्या बताया, नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन। अब नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मूला क्या है, C6H5NO2। उसको कन्वर्ट करना है एनिलीन में, C6H5NH2। यू नो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एनिलीन and this is the formula of nitrobenzene. क्लियर? ओके, चलो अब देखिए, हमें फाइंड करना है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहां दिया है 12.3 ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन, हमें W दिया है, तो W इज इक्वल टू EQIT डिवाइडेड बाय 96,500। इस फॉर्मूला को अगर मेरे को यूज करना है तो पहले चाहिए क्या, चाहिए मुझे इक्विवेलेंट वेट ऑफ दिस नाइट्रोबेंजीन। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, ये जो नाइट्रोजन है ना, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +5 और ये जो नाइट्रोजन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है -1। ओके, तो पूरी रिएक्शन के दौरान कितने ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज हो रहा है, 6। क्लियर? इफ nitrobenzene can gain 6 moles of electron, we get aniline. Okay, so start. Equivalent weight of C6H5NO2 is equal to, चलो अब करना क्या पड़ेगा, इनका मोलेक्युलर मास निकालना पड़ेगा। नाइट्रोबेंजीन का मोलेक्युलर मास अगर आप लोग निकालेंगे तो मिलेगा 123 ग्राम्स डिवाइडेड बाय कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हुआ, 6। सो इनका आंसर आता है 20.5 ग्राम पर इक्विवेलेंट। ओके, ये हो गया हमारा आंसर। ये आपको आना चाहिए। 123 कैसे निकालेंगे, कार्बन का एटॉमिक वेट कितना है, 12, हाइड्रोजन का कितना है, 1, नाइट्रोजन का कितना है, 14 और ऑक्सीजन का कितना है, 16। तो सभी वैल्यू को अगर आप लोग पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 123। क्लियर? डिवाइडेड बाय 6, तो उनकी ऑक्सीडेशन चेंज जितना हुआ उसको लिखेंगे अपन 6। सो आंसर आ गया 20.5 ग्राम पर इक्विवेलेंट। दिस इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ nitrobenzene. Now
W is equal to EQ into IT डिवाइडेड बाय 96,500। देखिए यहाँ I भी नहीं और T भी नहीं है पूरे न्यूमेरिकल में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। क्यों? क्योंकि फाइंड क्या करना है हमें, कूलम। तो ये भी लिख सकेंगे अपन W is equal to EQ into Q divided by 96,500। ओके, ये आपको बराबर से याद आना चाहिए ही चाहिए। इन प्लेस ऑफ IT मैंने लिखा यहाँ Q, एंड सो Q is equal to W into 96,500 and divided by equivalent weight। W कितना है 12.3 into 96,500 divided by equivalent weight कितना मिला 20.5, and so answer is 57900 कूलम। ओके, इतना कूलम अगर आप लोग पास्ट करेंगे 12.3 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोबेंजीन तो कन्वर्ट हो जाएगा एमिलीन में। ओके, नाउ नेक्स्ट, दिस वन आल्सो वन ऑफ द गुड क्वेश्चन। 0.2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द मोल्टन सॉल्ट ऑफ मेटल M। अब कौन सी मेटल है ये बताया ही नहीं है, लेकिन ये जरूर बताया कि एक सॉल्ट है, मोल्टन फॉर्म है, कौन से मेटल का, M मेटल का। ओके, नाउ सो पहले मैं लिख रहा हूं यहाँ F is equal to 0.2 फैराडे। सो 1.8 ग्राम ऑफ मेटल ऑब्टेन दिया है, W is equal to 1.8 ग्राम ऑब्टेन एट कैथोड। फाइंड द फॉर्मूला ऑफ मेटल क्लोराइड। हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है कि जिसके बेस पर डायरेक्टली हम ये मेटल क्लोराइड का फॉर्मूला निकालेंगे। ओके, नो टेंशन, लेकिन मैं पूरी सीक्वेंस बता रहा हूं, आपको समझना है। फैराडे दिया है, W दिया है, तो हमें W is equal to EQIT divided by 96,500 इस फॉर्मूला के पर से मिलेगा क्या, इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या है, एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय ऑक्सीडेशन स्टेट। हमें यहाँ दिया है एटॉमिक वेट ऑफ M is equal to 27, तो हमें ऑक्सीडेशन स्टेट मिल सकेगी। और अगर अपन को ऑक्सीडेशन स्टेट मिल गई मेटल M की, तो आसानी से हम मेटल क्लोराइड का फॉर्मूला बना पाएंगे। ठीक है, चलो मैं प्रैक्टिकली यहाँ लिख रहा हूं तो आपको मालूम हो जाएगा। फर्स्ट, W is equal to EQ into IT divided by 96,500। In place of IT upon 96,500 we can put here Faraday EQ into F, and so equivalent weight is equal to W divided by Faraday। अब कितना W दिया है 1.8 डिवाइडेड बाय फैराडे कितना मिला 0.2, तो इनका आंसर क्या आता है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू 9। ओके, ग्राम पर इक्विवेलेंट। ओके, चलो इक्विवेलेंट वेट मुझे मिल गया। अब क्या लिखेंगे अपन, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, or you can say valency of metal। okay, so oxidation state of metal is equal to क्या होगा, मोलर मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। तो मोलर मास कितना दिया है 27 डिवाइडेड बाय 9, एंड सो आंसर इज +3। तो अपना जो मेटल है उनके ऊपर चार्ज कौन सा है, +3। अगर इनका क्लोराइड बनाना है तो Cl- चार्ज होगा। क्लोराइड के ऊपर चार्ज कौन सा है, Cl-1। तो इन दोनों को मिलाकर अगर हम फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या आ जाएगा,
MCl है ना, बहुत अच्छा। फिर से पहले मेरे को दिया था फैराडे, ये लिख दिया, W दिया है, W बताया है तो आपको फॉर्मूला याद आना ही चाहिए, W इज इक्वल टू QIT अपॉन 96,500। तो याद होना चाहिए कि मेरे को इक्विवेलेंट वेट यहाँ से मिल जाएगा। तो इक्विवेलेंट वेट अगर मिल जाता है, एटॉमिक वेट यहाँ दिया है, तो मुझे क्या मिल गया, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, और यू कैन से वैलेंसी ऑफ मेटल, वैलेंसी ऑफ मेटल मिल गया। Cl माइनस तो मेरे को मालूम ही है क्लोराइड की फॉर्मूला Cl माइनस, और M+3 और Cl माइनस को अगर हम लोग ज्वाइन करेंगे तो मिलेगा क्या फॉर्मूला, MCl3। ओके, सो दिस इज द आंसर, MCl3। तो दोनों ही क्वेश्चन JEE और नीट लेवल के MCQ है, इनकी प्रैक्टिस करना, और नेक्स्ट लेक्चर में अपन और कुछ MCQ की ओर जाएंगे। बाय बाय।